Hello everyone. Good morning, children. How are you all? I hope you all are good. And very soon we will meet in school, right? So, today we are going to start lecture number 3 of chapter 4. Okay? So, come to the chapter number 4. Yes. So, in last two lectures, we had learned about the introduction point. Just we go through the introduction, then learn about the great national uprising of 1857, then boycott and indigenous movements. And now you all know what is the meaning of boycott and indigenous, right? And also, you all know about the divide and rule policy of the Britishers, then Muslim League. We how to divide Hindu and Muslim due to Britishers policy, right? Now you all know all clear about these all topics. See, then birth and development of extreme revolutionary movement, and in this topic we had done 3 paragraph. So in first paragraph mostly given the name of the revolutionaries and revolutionary activity started by the Vasudev Balavan Phadke. Then in second paragraph रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुई थी और पूरे कंट्री में फैल गई थी उनके रिलेटेड है. देन इन थर्ड पैराग्राफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक declare the statement or slogan that is the freedom is my birthright and I will achieve it anyhow, right? So now fourth paragraph. So we start from the fourth paragraph. हमारा यहाँ से पेंडिंग था. और हाँ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मोस्टली फर्स्ट फेब से स्कूल स्टार्ट हो रही है, राइट? स्कूल में से आपको बोलेंगे ही. सो प्लीज़ प्लीज़ कम टू स्कूल बिकॉज ये आप जो अभी तक ऑनलाइन पढ़े ना उसमें आपका इतना नहीं हुआ है, इतना समझ भी नहीं आ रहा है आपको और उतना परफेक्शन से आपने किया भी नहीं है. आप नहीं, सब स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि नहीं हुआ है अच्छे से. सो इट्स बेटर है कि आप अभी घर पे रहें और यही कह कर नहीं हम तो ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे. सो बेटर है कि आप स्कूल आओ इनसे कम. बिकॉज इफ़ आप स्कूल आओगे तो आपके जो डाउट्स होंगे, जो क्वेरी होगी वो सॉल्व होगी. एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि भी हमें क्या करना है, क्या चल रहा है. घर पे बेटे आपको कुछ पता नहीं है. सो इट्स बेटर है कि स्कूल पे आना. whenever school will start, mostly first Feb से ही start हो रही है. So please I request you all come to the school. Okay? No doubt मैम तो वहाँ से आपको ऑनलाइन भी देंगी ही अगर आप स्कूल नहीं आओगे तो. बट फिर भी जो स्कूल आएंगे उनके लिए अच्छा रहेगा और जो घर पे स्टडी करेंगे उनके लिए लॉस रहेगा. ओके? और हाँ, डोंट थिंक अबाउट द फेयर बुक एंड होमवर्क बुक कि भाई हमारी कंप्लीट नहीं है तो हम स्कूल का लेक्चर मिस करें. उनका कुछ ना कुछ हो जाएगा. बट स्कूल में आना, लेक्चर मिस मत करना, हॉलीडे मत रखना, छुट्टी मत लेना सिर्फ ये रीज़न की वजह से कि हमारी फेयर बुक बाकी है और होमवर्क बुक बाकी. वो तो हो ही जाएगा, ठीक है? चलो. सो नाउ बैक टू टेक्स्ट बुक, फोर्थ पैराग्राफ. बट बिफोर दैट वी जस्ट रीड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ तो हमारी लिंक बनी रहे. आप भी मेरे साथ रीड कर सकते हो. हमें जस्ट रीड करना है क्योंकि हमारा जो पूरा टॉपिक है वो एक साथ रहे, एक बीच में से कट ना, क्योंकि हमने 3 पैराग्राफ लास्ट
लेक्चर में किए थे और बाकी का हम आज करें। तो थोड़ा अगर रीड कर ले ना हम पहले से, तो क्या थोड़ी लिंक जो थी वो फिर से वापस आ जाए। So the revolutionary activity in India was started by the Vasudev Badvanj Phadke. Revolutionaries like Damodar Chapekar, Balkrishna Chapekar brother, Veer Savarkar, Barindranath Ghosh, Khudiram Bose, Praful Chakki, Rampradas Bismil, Asfaq Ullah Khan, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Shivram Rajguru, Sukhdev, Batukeshwar Dutt, Roshan Singh, etc. carried on the torch of the nationalism. Youth trained in making and using the weapons were the constant threat for the English government. Fierce revolutionary movements began in India and spread in other countries as well. And the circumstance in its background were the cancellation of the partition of Bengal, the partition of two groups, that is the Jahal radicals and Mawal moderates, at the Congress conference in Surat, and the terrific opposition to the practice of the Congress of making only resolution and requests. Lal Balpal trio adopted the radical attitude which brought a new life in the young Indian activists. The lethargic policy of the Indian National Congress got a solid new turn. Then Lokmanya Bal Gangadhar Tilak declared it firmly, freedom is my birthright and that I will achieve it at anyhow. This because the maxim for the revolutionary freedom fighters. Okay, now the fourth paragraph. At that time, a group of Indian youth undertook activities to seek a freedom from foreign rule. सी एट दैट टाइम हमारा इंडियन यूथ का जो ग्रुप था वो सब एक्टिविटीज़ कर रहा था, क्यों कर रहा था? फॉर द, हाँ, टू सीक फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। जो ब्रिटिशर्स के रूल थे, जो फॉरेनर रूल थे, उसमें से उनको फ्रीडम चाहिए थी। और फॉर दैट दे the group of the Indian youth undertook these activities, and these extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their lives for the motherland. और ये सब रिवॉल्यूशनरी थे वो एक्चुअली एक्स्ट्रा हैप्पी थे कि भाई उनकी मदरलैंड मीन्स मातृभूमि के लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे। उनके लिए भी वो खुश थे कि भी नहीं, हम हमारी मातृभूमि के लिए हमारी जो लाइफ है वो भी सेक्रीफाइस कर देंगे। दे कुड गिव अप द लाइफ और टेक अ लाइफ इन ऑर्डर टू अटेन फ्रीडम। वो फ्रीडम के लिए जान देने के लिए भी और जान लेने के लिए भी रेडी थे। समझे आप? अंडरस्टूड? गुड। सो क्या बोला कि भाई एट दैट टाइम जो हमारा इंडिया का यूथ का ग्रुप था पूरा, वो ये सब एक्टिविटीज़ कर रहा था फॉर द सीक ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल। एंड ये जो रिवॉल्यूशनरी थे उसमें वो इतने हैप्पी थे कि अगर उनकी जान भी उनको गंवानी पड़ी हमारी मातृभूमि के लिए फॉर आवर मदरलैंड, तो भी वो हैप्पी थे। एंड उन्होंने बोला था कि भाई दे कुड गिव अप देयर लाइफ, वो अपनी जान दे भी सकते हैं और टेक लिव्स लाइफ इन ऑर्डर टू अटेन फ्रीडम। फ्रीडम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बट उनको फ्रीडम चाहिए थी। देन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास province, Uttar Pradesh, and central India. See, these activities spread in mostly states like Maharashtra, Punjab, Bengal, Orissa, Gujarat, etc. Among these activities were some like Mitra Mela Society, Abhinav Bharat Samaj, Anushilan Samiti, Anjuman-e Mohillan-e Watan, Indian Patriots Association, लेटर वो भारत माता से जानी गई एक्सेट्रा, एंड दस गेव इम्पेटस टू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। और ये सब एक्टिविटीज़ थी वो फाइनली जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो हो स्टार्ट हो गई थी। आप अंडरलाइन कर लेना कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्प्रेड इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहाँ कहाँ पे हुई, आपको वो अंडरलाइन करनी है।
और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई, सॉरी ये सब एक्टिविटीज़ के बीच में ये सब जो मित्र महिला सोसाइटी वगैरह जो एक्टिविटीज़ हुई वो सब की आपको अंडरलाइन करनी है. ओके, so we had done 2 paragraphs. So now your turn for the reading. So you have 1 minute for both the paragraph. Just read it, underline important words, and then come to the next paragraph. Your time start now. Okay, done? Good. So now come to the next paragraph. In the first stage, newspaper and magazines like Sandhya, Yugantar, Navsak Shakti, Vande Mataram, Kesari, Maratha gave constant strength to the activities. ये सब जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स थे वो कंटिन्यूसली ये एक्टिविटी को स्ट्रेंथ दे रहे थे, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ दे के उनके रिलेटेड. About 34 revolutionaries were prosecuted in the Alipur massacre. Several revolutionaries were arrested in Havra massacre. बहुत सारे near about the 34 voluntaries थे. They were prosecuted in the Alipur. Then many revolutionaries were arrested in Havra and Dhaka. An attempt to kill Lord Hardinge by throwing a bomb in Delhi. Dropping bomb on Viceroy Minto on November 13, 1909 outside the Raipur Darwaja in Ahmedabad can all be given the example of this. Or uh, on 13 नवंबर 1909 को रायपुर दरवाजा के बाहर की साइड अहमदाबाद में वाइसरॉय मिंटो पर बॉम्ब ड्रॉप किया गया और ये एक एग्जाम्पल था ये सबका और सबको दिया गया था. ये था एक फर्स्ट स्टेज एक्टिविटीज़ का कि भाई एक तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में बहुत से अच्छे इनके ये एक्टिविटीज़ के रिलेटेड न्यूज़ दे रहे थे और उनकी वजह से वो एक्टिविटी को और स्ट्रेंथ दे रहे थे. फिर कितने सारे रिवॉल्यूशनरी को अरेस्ट किया गया और कितने सारे को प्रोसिक्यूट किया गया और फिर उन्होंने दिल्ली में एक बॉम्ब ड्रॉप किया और अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा के बाहर वाइसरॉय मिंटो पे एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया और ये था एक बेस्ट एग्जाम्पल सबको देने के लिए. And in the second stage, in 1920-42, events like the Kokari loot case, Lahore massacre, and dropping of the bomb on Central Parliament. भी दिल्ली में पार्लियामेंट में भी बॉम्ब ड्रॉप किया गया था और ऐसी सब इवेंट हुई सेकेंड स्टेज. एंड यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द अदर रिवॉल्यूशनरी एंगेज इन ऑल दिस एक्टिविटीज़. यस, और हम लोगों ने अदर जो एक्टिविटीज़ थी वो अच्छे से पढ़ी ही है. क्लियर? सो फर्स्ट स्टेज पे क्या हुआ था और सेकेंड स्टेज पे क्या हुआ था ये मैं दोनों पैराग्राफ में दिया है कि कौन कौन सी इवेंट हुई थी. सो नाउ यू ऑल क्लियर अबाउट दैट. जस्ट रीड इट, अंडरलाइन इट कि भी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई थी एंड देन डन दिस topic and then start the next topic. So just read it and underline the name of activities. Okay. In 30 seconds, you just read both the paragraph and then we'll come to the next topic.
ओके, 30 सेकेंड डन। चलो नेक्स्ट, fierce revolutionary movement in Gujarat. Sri Aurobindo Ghosh was the pioneer of armed revolution in Gujarat. आर्म रिवॉल्यूशन मीन्स जो आर्मी रिलेटेड क्रांति हुई, उनकी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई, वो गुजरात में कैसे हुई, उनके पास इनका स्टार्टिंग श्री अरबिंदो घोष ने किया था। बट ही रिमेन बिहाइंड द कर्टेन, बट वो रहे सबके मीन्स पर्दे के पीछे, वो बाहर नहीं आए थे, उन्होंने सबके सामने शो नहीं किया था कि वो उनके पायोनियर थे, वो ही पायोनियर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, बट स्टिल ही रिमेन बिहाइंड द कर्टेन। हिज ब्रदर बरिंद्र कुमार घोष ऑलवेज रिमेन इन द फोर फ्रंट, और उनके जो ब्रदर थे वो ऑल टाइम सबसे आगे ही रहते थे, वेर इज वो ये श्री अरबिंदो घोष थे वो पीछे रहे थे। मीन्स दिखाया नहीं गया था कि भी उन्होंने सब किया था, बट किया था उन्होंने। ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव टूवर्ड्स द सदर्न पार्ट। हियर ही मेट श्री छोटूभाई एंड श्री अंबुभाई पुरानी। फिर वो गुजरात से ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव टूवर्ड्स द सदर्न पार्ट, और उन्होंने साउथ पार्ट की साइड गए, और यहाँ वो एक छोटू भाई और अंबू भाई को मिले, एंड वेरी एबल कंपेनियंस, बहुत अच्छे कंपेनियंस। सक्करिया स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, नर्मदा के तट पे वो एक सक्करिया स्वामी को मिले, एंड दिस स्वामी वॉज एसोसिएट विद द क्वीन ऑफ झांसी एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। जब 1857 में वो रिवॉल्ट हुआ, एट दैट टाइम जो क्वीन ऑफ झांसी थी उनके साथ थे ये स्वामी, मीन्स एसोसिएट विद दैट क्वीन ऑफ झांसी एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट। Bharendranath Kumar involved some of the middle class youth from the Vadodara, Charotar means Kheda Ahmedabad, Mehsana in revolution। और बरिंद्रनाथ जो थे वो किसके साथ इन्वॉल्व थे, तो ये एक्टिविटीज़ ये रिवॉल्यूशन में जो अहमदाबाद, महसाना और वडोदरा से मिडिल क्लास फैमिली के यूथ थे उनके साथ इन्वॉल्व थे। And in relation to these activities, the buggy of Virus window was bombed outside Raipur Dwaraja in Ahmedabad। ये हमने ऑलरेडी ऊपर देखा था। ये पैराग्राफ में कुछ नहीं था, सिर्फ ये अरबिंदो घोष और बद्रीनाथ के लिए इसमें इंफॉर्मेशन दी है कि भी उन्होंने अरबिंदो घोष ने स्टार्ट किया था गुजरात में ये आर्म रिवॉल्यूशन, फिर वो सबसे आगे नहीं दिख आते थे, मिस बरिंद्रनाथ थे वो ऑल टाइम फोर फ्रंट रहते थे, वेर एज अरबिंदो घोष है वो रिमेन बिहाइंड द कर्टेन। पहले वो गुजरात आए थे, फिर सदर्न पार्ट साइड उन्होंने मूव किया, गुजरात में वो किसको मिले थे, कहाँ मिले थे, फिर बरिंद्रनाथ कौन से यूथ के साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, यह सब दिया है और कुछ न्यू नहीं है इसमें। अंडरस्टूड, गुड। देन नेक्स्ट है श्री अरबिंदो घोष डिस्क्राइब द स्कीम फॉर द रिवॉल्यूशन इन हिज बुक नेम भवानी मंदिर। उन्होंने उनकी बुक में एक नाम दिया था भवानी मंदिर। ये एक स्कीम पूरी डिस्क्राइब की थी रिवॉल्यूशन के लिए। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन गुजराती एंड पब्लिश्ड इन जर्नल दक्षिणा सी, और इनका ट्रांसलेट गुजराती में भी हुआ था, और ये पूरी बुक थी वो एक रिवॉल्यूशन की जो स्कीम थी उनके रिलेटेड ही थी। बिसाइड दिस बुकलेट्स विथ टाइटल लाइक देशी वनस्पति दवाओ, देन नहावाना साबु बनावવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો, કયાડાનો સંગ્રહ etc. were published in order to spread the thought of revolution। सी फर्स्ट बुक जो थी अरबिंदो घोष ने बनाई थी पूरी भवानी मंदिर, जो रिवॉल्यूशन के लिए स्कीम्स वगैरह उसमें थी, और फिर बहुत सारी बुकलेट्स बनाई थी जिसके टाइटल्स थे देसी वनस्पति दवाओ, अंडरलाइन दिस, नहवानो साबु बनावવાની રીત,
कि भाई उसमें क्या था रिलेटेड कि भाई नहाने के जे साबु के लिए क्या कैसे बनाते वगैरह। देन कसरत, देन गुलाबनो किस्सो, कयाडानो संग्रह, ये सब जो बुक वगैरह उन्होंने बनाई थी और पब्लिश भी की थी, और ऑल ओवर द कंट्री में रिवॉल्यूशन के थॉट से वो स्प्रेड किए गए थे बाय दिस बुक, सो दैट द ब्रिटिशर्स वॉन्ट अंडरस्टैंड। और ब्रिटिशर्स ये सब समझ नहीं पाते थे बिकॉज ये सब हमारी लैंग्वेज में थी। दिस बुकलेट्स कंटेन द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बॉम्ब्स, और ये सारी जो बुकलेट्स थी उसमें ये भी मेथड दी गई थी कि भी बॉम्ब कैसे बनाते हैं। गंगानाथ विद्यालय वॉज एस्टेब्लिश्ड नियर चंदोड़ कर्नली where secret revolutionary activities were carried out। ये विद्यालय नियर चांदोड़ कर्नाली के पास एस्टेब्लिश किया गया था और वहाँ छुपे तरह से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज सिखाई जाती थी। तो ये सब इंग्लिश मीन्स ब्रिटिशर्स को पता नहीं था कि ये सब ऐसी बुक्स है जो पब्लिश हो रही है उसमें क्या लिखा है, ये कैसी एक्टिविटीज़ कहाँ चल रही है। तो उनके पीछे ये सब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी। मैनी गुजराती यूथ ज्वाइन दिस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अगेंस्ट whom stern action was taken by the government, but the fight did not stop and finally government realized that suppression would not help to rule over India। और फाइट है वो स्टॉप नहीं हुई और फाइनली गवर्नमेंट को जो बहुत सारे उन्होंने रूल्स वगैरह सब पीपल के ऊपर लगाए थे उनको रिलीज करना पड़ा। क्लियर। और इंडिया के ऊपर जो वो रूलिंग कर रहे थे उसमें उतनी उन्होंने गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की, तो वो भी कम हो गया और हमारे पे जो बहुत सारे रूल्स वगैरह लगाए थे उसमें से भी हम रिलीज हो गए। तो ये थी फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात। स्पेशली फॉर द गुजरात के लिए ही ये इंफॉर्मेशन थी, ये टॉपिक था। ये जो था फर्स्ट कि बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, तो ये पूरे कंट्री के लिए इंफॉर्मेशन दी थी हमें कि भाई पूरे कंट्री में कैसे ये रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम एक्टिविटीज़ के लिए सब स्प्रेड हुआ, और ये था गुजरात के लिए। सो वी हैड डन दिस 2 points here, topics. So now you just read this fierce revolutionary movement in Gujarat। अच्छे से अंडरलाइन कर लो सिर्फ ये जो बुकलेट्स वगैरह थी, फिर ये दोनों के नाम अरबिंदो घोष एंड बरिंद्र कुमार कि भी उन्होंने क्या क्या किया, वो किसके साथ इन्वॉल्व थे, कहाँ थे, किसको मिले थे, और ये कौन सी बुकलेट्स थी और कहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है वो चल रही थी जो ब्रिटिशर्स को पता नहीं चली थी। फिर ये जो विद्यालय इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो सब आप अंडरलाइन कर सकते हो। ओके गुड, चलो। सो हियर वी डन दिस बोथ द टॉपिक एंड ऑल्सो वी डन today's lecture। And again I request you, please, when will school start, please come to the school। okay, so in today's homework write a short note, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन गुजरात। बस एक ही क्वेश्चन है। ओके एक ही क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन गुजरात, शॉर्ट नोट लिखनी है आपको। चलो, गुड बाय एवरीवन।